I am very happy to see your smiling faces, a bright future of our India. Okay, because you are the bright futures of our India, of our country. Am I right? Okay, so definitely you have to do in that way. Okay, this is a very important lecture. You are so lucky because with the help of ma'am, you got the opportunity to listen me. Okay, so first before that, I would like to discuss about what is communication. What is communications? Okay, within 20 minutes I will discuss what is communication, then and then communication skill. Okay, you know, this is a very vast topic because at graduation level I think you have heard the word communicative English. Okay, communicative English, and then another name is BMC, Bachelor of Mass Communication, and after that you can do MMC, and then you can do PhD also only in the communication. So communication is a so vast topic, so vast, and within 20 minutes it is not possible for me to introduce all that things. Just I will highlight, I will introduce what is communication. Okay, and then what is communication skill. In future, when I will get opportunity or if I will have a time, so then definitely I will discuss rest of the thing in detail. But in today's video lecture, just I will highlight only about the communications. Okay, you know, so moving further, I would like to ask, what is communications? Who can tell me what is communication? Yes, what do you think? Yes, what do you think? Yes, you. What is communication? Okay, sit. Just tell me. Okay, what is communication? Yes, you. What is communication? हाँ? संवाद साधने. ठीक है. जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेशन संवाद साधने है ना. So this is not the complete definition of communication. Communication doesn't mean that संवाद साधने. This is the incomplete sense. ये पूरा incomplete है. मतलब communications का मतलब सिर्फ संवाद साधना नहीं होता. Now I am going to discuss that things practically. So dear friends, I have not used a single words. I have not uttered a single word. But whatever I have indicated, that you understood very well. And
यू एक्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं थोड़ा बाइलिंगुअल समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे आपने बोला संवाद साधने, मतलब कुछ बोलना। अभी मैंने आपसे कुछ भी वर्ड्स नहीं बोला, मैंने जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दिया और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आप एक्टिंग करते गए, समझ भी गए आप। क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ, आपके लिए बिल्कुल नया हूँ, आपको मेरा नाम भी मालूम नहीं आपको, फिर भी आप जो भी कुछ मतलब मुझे रिप्लाई किया, जो मैंने आपको बताया एक्शन, वो आप समझ गए। तो देखिए कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है कि जो लैंग्वेज इज द वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज नॉट अ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज नॉट अ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? ये डेफिनेशन आप जब यूपीएससी की एग्ज़ाम देने जाओगे या बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय ये पूछा जाता है। अधिकांश इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो उस समय आपको ये बताना है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव का मतलब जो होता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करना चाहिए। तो इंडिकेशन, अब उस इंडिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। और यहाँ मैंने इंडिकेट करने के लिए मैंने अपने फिजिकल जो मेरे जेस्चर थे, फिजिकल मेरा जो हाव भाव था, फिजिकल जो एक्टिंग थी, ऑन द बेसिस ऑफ माई फिजिकल एक्टिंग मे बी माई सम साउंड्स, ओके, सम फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, you can understand, you are going to understand and you understood very well and accordingly you put the result, you did that thing. अब ये सवाल आता है कि कम्युनिकेशंस क्या सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग में ही होता है? नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, यू नो, उनमें भी कम्युनिकेट होता है। जैसे बर्ड्स जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज नहीं कह सकते हम, बट वो एक सिंबॉलिक, क्योंकि सिंबॉलिक होती है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंबल दे कैन अंडरस्टैंड। जैसे अगर मान के चलो गाय का बछड़ा है, जब उसके भूख लगती है तो भूख लगते समय उसके अलग वो अपने रिएक्शन शो करेगा, है ना। जब उसे कुछ थोड़ा सा खेलना है या उसे पेन हो रहा है तब वो अलग वो करेगा। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जब मान के चलिए अगर विद इन 1 ईयर तक के, तो बच्चा क्या लैंग्वेज बोलता है, क्या कम्युनिकेट करता है वो जैसे बहुत ज़्यादा रोता है या उसके फेशियल एक्सप्रेशन हमको समझ में आ जाता है कि अभी उसको भूख लग गई या कोई प्रॉब्लम है ना, वो कम्युनिकेट करता है, वो डॉक्टर वो समझ लेता है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 20 मिनट्स में डिस्कस करने वाला टॉपिक नहीं है। कम्युनिकेशन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, है ना। और ख़ुद मेरा ग्रेजुएशन में कम्युनिटी इंग्लिश था, मैंने 3 साल कम्युनिटी इंग्लिश पढ़ा हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में आपसे बात भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, ओके, जस्ट आई विल हाईलाइट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में मेजर डिफरेंस क्या है? हु कैन आंसर? हु कैन गिव द आंसर? जस्ट बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल और ह्यूमन बींग्स। आपके पास में जानवर तो देखे होंगे घर में, क्या डिफरेंस है? ह्यूमन बींग बोल सकते हैं और जानवर बोल नहीं सकते। जानवर नहीं बोल सकते, तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? और वी कैन से बायोलॉजिकल भी रीजन आप कह सकते हो। कोई बता सकते हैं? अंकित? नहीं? चलिए, तो आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट था कि नहीं था?
और आप लोग मिस कर रहे थे, मैम की बात नहीं सुन रहे थे आप, है ना। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब आप अपने लाइफ में अगर कोई भी चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज किए, किसी भी छोटी चीज़ को, तो आप, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है या बहुत सारे अच्छे जो ग्रेट लीडर हुए, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को कंसीडर किया, तब के जाके वो बड़े बने। छोटी चीज़ें होती है। तो हमारा जो एक एटीट्यूड होता है ना, निगलेक्ट करने का, किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं हम बिना सोच समझे, तो वो कहीं ना कहीं एक हो सकता है, कभी कभी आपके 100 लेक्चर आपके कोई काम के नहीं, लेकिन कभी कभी 20 मिनट का लेक्चर भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, 20 मिनट्स का भी। और इसलिए मैंने कहा कि आज की जिस लेक्चर से जो कुछ भी सीखोगे, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? ओनली फॉर मैम, सिर्फ मैम को देंगे, क्योंकि शायद मैम के अगर कांटेक्ट में नहीं होता तो आज का ये लेक्चर आपको सुनने को नहीं मिलता। चलिए ठीक है, मैं साइंटिफिक टर्म बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर आपके जो सुकड़ी में अगर कोई डॉग है ना, सुकड़ी का जो कुत्ता है वो भौंकता है ना, और उसके बाद में कोलकाता में जाके वही कुत्ता अगर भौंकता है तो उसकी इसमें डिफरेंस दिखाई देगा क्या? जैसे सुकड़ी में जिस तरह से भौंक रहा है, वैसे ही वो कोलकाता में भी जाके उसी तरह से बार्किंग करेगा। वो विल फाइंड एनी डिफरेंस? अगर वो अमेरिका में जाता है तो कोई डिफरेंस दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है ना। दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। जैसे यहाँ पे बार्किंग कर रहा है, सेम वैसे बार्किंग वहाँ पे करेगा, अदर कंट्रीज में भी करेगा, अदर कंट्रीज में भी करेगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो उनके अंदर में जो इफेक्ट होता है जो कम्युनिकेशंस का, वो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मेमोरी। दो प्रकार की मेमोरी होती है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में जो रैम जो इनबिल्ट रहेगी, तो हम उसको निकाल नहीं सकते, और एक एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं। तो एनिमल्स में ये समझ लीजिए कि ये इनबिल्ट है, ये मतलब बायोलॉजिकली उनके अंदर में ट्रांसफर्ड हुई है, बायोलॉजिकली ट्रांसफर्ड हुई है। तो वो चाहे कुत्ता कहीं का भी रहे, वो एक जैसे भौंकेगा। लेकिन सुकड़ी में रहने वाला एक, जैसे क्या नाम है आपका? राकेश। सुकड़ी में रहने वाला जो राकेश लड़का है, और वेस्ट बंगाल में रहने वाला और कोई लड़का है, तो ये मराठी बोल रहा है, वो बंगाली बोलेगा। जर्मनी में रहने वाला जो लड़का है वो जर्मनी लैंग्वेज यूज़ करेगा, जर्मन लैंग्वेज यूज़ करेगा। यूके में रहने वाला, यूएसए में रहने वाला इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेगा। उसके लैंग्वेज में तो डिफरेंस आ गया, है ना। आप यहाँ पे बोलने वाला बंगाली टर्म्स यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में रहने वाला, उसका लैंग्वेज सेम होगा। मतलब आपके ऊपर सराउंडिंग का जो इफेक्ट होता है, जो बच्चा जैसा सुनता है ना, गांव के रहने वाले इसलिए कभी कभी आपके इसमें टर्म्स में बोलते हैं यार ये गाँवठी है ना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में वो वर्ड्स आते हैं। और जो शहर में रहने वाला कहते नहीं, उसकी लैंग्वेज पुनेरी लैंग्वेज है, ये वराड़ी लैंग्वेज है, ये झाड़ी पट्टी वाली लैंग्वेज है ना, ये नागपुरी लैंग्वेज है। तो ये भाषा कैसे हम, क्योंकि जिस एरिया में रहते हैं हम, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, एनिमल्स पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उनकी इसमें ट्रांसमिटेड हुई है, बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड हुई है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं होता, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है, जैसे मान के चलिए, यस गिव मी अ बुक, ये जैसी बुक्स है, नाउ लुक एट दिस। अब इस बुक्स में अब जो कुछ भी, जैसे मैंने एक बुक्स मैंने लिखा हो, या मैंने जैसे मेरा एक अभी यूट्यूब चैनल बताया, मैंने यूट्यूब चैनल में मेरी जो सीरीज आएंगी, है ना, मैं तो सीरीज लेके चले जाऊँगा, लेकिन जो मैंने 30 ईयर्स में मैंने जो मेहनत किया, उसका आपको ईजीली 1 मिनट्स के अंदर में या 1 मंथ्स के अंदर में आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके पीछे बनाने के पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कितने समय में मिल गया? विदिन 1 मिनट्स कहिए आप, 1 आवर्स की, या फिर जो ऑटो में भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको मिल गया, ठीक है। मोबाइल की खोज करने वाले ने काफ़ी अपनी मेहनत की होंगी, लेकिन उसका एडवांटेज आपको मिल रहा है। ये जो आप पहले के झेडपी स्कूल में ऐसी इस तरह की बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्या कर सकता है, जो स्टोर नॉलेज है, जो पूर्वजों ने या हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, इन लोगों ने जो अर्जित किया है, उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं हम,
यूज कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द स्टोर नॉलेज फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, and that knowledge is implementing to your progress. When you learn something from your grandfather or some dignified persons or great persons, so definitely they took a lot trouble to create that verse, but you are using the same and you are going to improve yourself. But in case of animals, they will not implement the stored knowledge. Whatever they are living in the present scenario, in the present circumstances. अगर उनकी 20 ईयर्स की लाइफ है तो 20 ईयर्स में जो खुद से गेन करेंगे वही वो अपनी इसमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. उनके दादा परदादा ने उनके लिए कुछ बना के रखा, वैसा उनको बेनिफिट मिलता है कि एनिमल्स में नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें मिल रहा है. तो यू आर सो लकी. आप लकी हो क्या नहीं आप? क्योंकि एनिमल्स होते हैं वो जो कुछ भी खुद से अपने इसमें अचीव करेंगे, जो भी स्किल अचीव करेंगे वो वही तक के रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी. लेकिन मैंने जो कुछ भी अपने लाइफ में गेन किया, मेरा जो नॉलेज है, जो कुछ भी है ना, जैसे मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल की बात कहो तो मेरे जो वहाँ पे वीडियो पब्लिश रहेंगे वो अल्टीमेटली मैं इस दुनिया में रहूँगा नहीं भी रहूँगा तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. आज मेरा ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसका बेनिफिट अदर स्टूडेंट को भी मिल जाएगा. लेकिन एनिमल के केस में होता है क्या? नहीं होता है. तो फिर आपकी लाइफ तो बहुत बेहतरीन लाइफ है. तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, मैं पूछूंगा मैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैम को मैं पूछूंगा, क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है. इन सबके चेहरे मुझे दिखा दो, है ना अंकित? सबके तरफ कैमरा हाईलाइट कर दो. भगवान ने आई एम सेइंग इन तीनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में. गॉड कैन गिव एनीथिंग. What I am saying, God can give anything, but one thing He cannot give. That you have to achieve. Okay. If you want to purchase chalk, if you want to purchase mobile phone, if you want to purchase fan, so you will get easily in the market of Tirora, in the market of Gondia, in the market of Nagpur. But if you want to purchase knowledge, कैन यू परचेस नॉलेज? जस्ट मैंने कहा, आपके पिताजी ने दे दिया कि 1 लाख रुपए लो और गोंदिया के मार्केट से लेके आओ. योर फादर विल से जस्ट टेक 1 लाख रुपीज एंड परचेस फ्रॉम गोंदिया और नागपुर और वट एवर में भी. नो, नेवर, इट विल नेवर हैपन. भगवान ने एक ही चीज़ आपको फ्री में नहीं दी है और वह है ज्ञान. इसलिए कृष्ण भगवान को भी जंगल में जाना पड़ा, उसे भी अपना गुरु बनाना पड़ा. उसके पास तो करोड़ की संपत्ति थी. क्यों उसको मेहनत करना पड़ता? क्यों सुदामा के साथ उसको रहना पड़ता? क्योंकि ज्ञान ये चीज़ है, ये मुफ्त में नहीं मिलती. आपके पिताजी आपके लिए करोड़ों की किताबें ला सकते हैं, कंप्यूटर दे सकते हैं, अच्छा लैपटॉप दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं. मैं यूट्यूब में 200 वीडियो डाल भी दूंगा, लेकिन अगर आप उसको वॉच नहीं करोगे तो आपके अंदर में स्पोकन इंग्लिश वाला नॉलेज क्रिएट नहीं होगा. आपके पापा आपको करोड़ों की संपत्ति दे सकते, बहुत कुछ दे सकते, बट नॉलेज नहीं. एंड फॉर दैट यू हैव टू अचीव. इसलिए मैंने डेडिकेशन की बात कहा. मैंने बॉयज़ का नंबर क्यों नहीं लगता और गर्ल्स का नंबर क्यों नहीं लगता? क्योंकि बॉयज़ वो खुद मेहनत ही नहीं करते और नॉलेज फ्री में नहीं मिलेगा. कल भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिलेगा और इन फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा. जितना आप उसके लिए अचीव करोगे, जितना आप उसके लिए स्ट्रगल करोगे, उतना ही मिलेगा. और वही तो कम्युनिकेशन स्किल है. दैट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन. फ्री में नहीं मिलेगा. ये आप टर्म्स अपने दिमाग से निकालो कि मुझे फ्री में मिलेगा करके. नहीं, उसके लिए आपको नीचे बैठना पड़ेगा, उसके लिए धूप में बैठना पड़ेगा, उसके लिए जो भी ठंडी बरसात, वट एवर यू हैव टू टेक दिस ट्रबल, यू हैव टू टेक द ट्रबल. until and unless you will not have trouble, you will not bear the trouble, you cannot achieve the knowledge.
So one thing I would like to suggest regarding the knowledge, okay, knowledge doesn't get anywhere. What I'm saying, knowledge doesn't get anywhere. We have to achieve knowledge. Achieve. What I'm using the terms achieve. नॉलेज कहीं पर भी नहीं मिलता, उसे प्राप्त करना पड़ता है। कोई चीज़ मिल सकती है, मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, यू कैन गेट द मोबाइल फ़ोन, यू कैन गेट द प्रॉपर्टी, यू कैन गेट सो मेनी थिंग। आज आपके पिताजी कलेक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कलेक्टर बन जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो नॉलेज के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं जाके नॉलेज अच्छी होगा। जैसे वन एग्जांपल आई वुड लाइक टू सजेस्ट, बिकॉज यू कैन वॉच द इंटरव्यू, आप कटरे मैम मीन्स मैम्स मदर, ओके, सी सजेस्टेड वन थिंग वेरी राइटली, ओके, सी डिस्कस इन दैट थिंग इन इंटरव्यू, ओके, व्हाट डिड शी से कि व्हेन शी वाज in we can say president of village, or we can say sarpanch, okay, so she was studying, she completed only 11th class, okay. After that, when she visited APJ Abdul Kalam, okay, who is the ex-president of our India, so she was unable to interact in English, so she felt very guilty and she realized, okay, until and unless if I will not continue my education, so I can't achieve that things. And after marriage she completed her 12th class, and after that she completed graduation in BCom. That is the real thing, okay. कि चलो हिंदी में भी बता देता हूँ मैं, जो अभी कि मैम की जब मैंने इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू मेरे चैनल पे भी है ना, हाँ, इनकी मम्मी, तो उनकी मम्मी ने जब मैंने एक सवाल पूछा था, तो जब 11th क्लास में जब थी और जब गांव की सरपंच थी, तो उस समय APJ अब्दुल कलाम से मिलने गए, तो APJ अब्दुल कलाम इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मैम की बहुत इच्छा थी कि और उनसे मैं इंटरेक्ट करूं, लेकिन उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, है ना, इंग्लिश समझ में या प्रॉपर वे में बोल नहीं पाते थे, तो इसके कारण उनकी बहुत इच्छा थी। जैसे आप देखो, मैं अभी तक के राष्ट्रपति भवन में नहीं गया मैं, लेकिन इनके मैम के मम्मी को चांस मिला है, कितने सौभाग्यशाली है, और उन्हीं के सौभाग्य से मैम से कांटेक्ट हुआ, और मैम के कांटेक्ट से आप लोगों से कांटेक्ट हो रहा है ना। देखिए एक चीज़ से कितनी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि आज की जो कुछ भी आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, आपके जीवन में जो कुछ भी चेंजेस होगा, तो वो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैम को और मैम की मम्मी को दीजिएगा, मुझे नहीं, है ना, क्योंकि उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ना। मेरे तो लेक्चर कई सारे जगह होते रहते हैं, है ना। तो वो चीज़ उनके अंदर में आई कि नहीं, मैं भी सीख सकती हूँ, तो आफ्टर मैरिज भी उन्होंने सीखा। एक गाव का आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। मेरे एक इंटरव्ह्यू आहे, खेड्यात राहतो म्हणजे काय झालं, खेड्यातून आपण पुढे कसं जाऊ, उस इंटरव्यू को भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आज से अपने दिमाग में ये चीज़ निकाल लो आप कि आपको फ्री में ये मिलेगा नहीं, बिल्कुल बॉयज। आप लोग पीछे क्यों रहते हो? क्योंकि आपके पीछे डेडिकेशन नहीं है, वर्क नहीं है। आप 20% मेहनत करोगे, 20% ही आपको मिलेगा। 30% मेहनत करोगे, 30% मिले। भगवान ने एक चीज़ में पार्शलिटी नहीं की, ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ में पार्शलिटी नहीं की, और वो है नॉलेज देते समय। नॉलेज, उसने नॉलेज उसी को दिया जो उसके पीछे ईमानदारी से मेहनत करेगा। फिर चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो एक सुकड़ी ग्राम का हो, या फिर खोड़गांव जैसे छोटे से गांव का हो, या किसी भी जगह का हो, जो उसे प्राप्त करेगा, मतलब जो उसके पीछे मेहनत करेगा, उसी को ही मिलेगा। नहीं तो अगर आपने देखा होगा, जो उड़ीसा जैसे इसमें CBSE में टॉपर नहीं आ रही थी, CBSE के टॉपर आप देखो, आप कई बड़े सिटी के या फिर बहुत बड़े बड़े जो डिग्निटरीज होते हैं, हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उन्हीं के बेटे थोड़ी खाते हैं, वो तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अगर आप IAS ऑफिसर की बात करोगे तो 60% जो IAS ऑफिसर है ना, वो मिडिल क्लास से आए हुए है, मिडिल क्लास से। ये प्रूफ के साथ में मैं आपको पेश कर सकता हूँ। 60% IAS ऑफिसर। नेता कोई भी बन सकते हैं, ठीक है। अभिनेता बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए, ठीक है। नेता कोई भी बन सकता है, लेकिन अभिनेता की एक्टिंग जो होता है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको जाओ, है ना। तो लाइफ टाइम के लिए एक याद रखना, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी, आप चाहे इन फ्यूचर में जो कुछ भी बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, व्हाट में भी नॉलेज प्राप्त करना है, अचीव करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
जी। और जो लास्ट बात है, मेरे को टाइम का बंधन है, कम समय में आपको बहुत कुछ बताना है, ठीक है। वेरी लास्ट 5 मिनट्स में मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? इसको समझने के लिए मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, उस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। अगर वो समझ गए तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है ये आप समझ जाओगे, ध्यान से समझ जाओगे, ठीक है। एक सेंटेंस से आपको कम्युनिकेशन स्किल की पूरी डेफिनेशन और व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं उसे हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों में बता दूंगा मैं, ठीक है। पहले इंग्लिश में स्टार्ट करता हूँ, ओके। वाइज मेन स्पीक बिकॉज they have something to say. Once again I am repeating the sentence. Wise men speak because they have something to say. Fools speak because they have to speak, they have to say something. Okay, once again I am telling. Fools speak because they have to say something. No? समझ में आया इसका मीनिंग? आया या नहीं है? तो फिर मैं हिंदी और मराठी में समझाता हूँ। अगर समझ में आ गए तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी को समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़े कीजिए, ना नहीं आए? इतने लोगों को नहीं। चलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बुद्धिमान जो होते हैं ना, वो बोलते हैं क्योंकि उनके पास कुछ होता है ना। वाइज स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग, मतलब उनके पास कुछ है इसलिए वो बोलते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, दे स्पीक बिकॉज दे हैव टू स्पीक, उनको बोलना पड़ता है। अभी जैसे मैम ने एक दे दिया ज़बरदस्ती में कि नहीं विनोद सर आप 20 मिनट्स का ये प्रोग्राम ले लीजिए, तो मेरी इच्छा ना होती हुई एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैंने 20 मिनट्स ले लिया। वो क्या हो गया, मुझे बोलना है इसलिए बोल दिया, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई मतलब नहीं। मैंने एक 20 मिनट्स की अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। कुछ भी बोलना है, उसका कोई मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं। आप बोलोगे कि विनोद सर के 20 मिनट्स के लेक्चर में आपको क्या समझ में आया, तो कुछ नहीं, नथिंग, वो हो गया क्योंकि बोलना था बोल दिया। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि अगर हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारी बात दूसरों को ना समझ में आए तो दैट इज नॉट द कम्युनिकेशन। वो अंडरस्टैंड होना चाहिए।